Miss Meena and Miss Rina are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:2. From the following trial balance and the adjustments, you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 13 and the balance sheet as on that date. They are given you trial balance as on 31st March 2013. 31st March 2013. Building, plant and machinery, purchases, carriage, opening stock, wages, right? Sundry debtors, salaries, postage and telegram, insurance, bad debts, rent, discount and drawings. Credit pay, capitals, sales, sundry creditors and bank overdraft. This is March 2014 का question. What is given? Adjustments. Stock on hand on 31st March 13 was valued at 1,10,000. Closing stock entry, trading credit, adding assets. Depreciate plant and machinery at the rate of 10% per annum. Depreciate plant and machinery. So, plant and machinery को adjustment है. 10% depreciation है. 1,20,000 का 10%. That is 12,000 will be depreciation. Assets से minus होगा 12,000. P&L debit में add होगा 12,000. आगे. Create reserve for doubtful debts at the rate of 5% on sundry debtors. RDD है 1,50,000 का 5%, 7,500 bad debts RDD रहेगा. Debtors से minus होगा 7,500 if there is no other adjustment related to debtors, and then it will be debit to P&L. P&L को debit करेंगे. आगे salaries include है तो salary से minus करेंगे. Salaries include 2,500 as advance to worker. So you are given salary and that includes prepaid salary or advance. Anything paid in advance is not expense but asset. ठीक है? So salary से minus होगा 2,500 and asset में add होगा 2,500. Then partners are allowed interest at the rate of 5% per annum on their capitals. Partners are allowed interest at the rate of 5% per annum. So interest on capital की adjustment है. 3 lakhs का 5%, 10% आएगा 30,000, उसका हाफ 15,000, इसका 10% आएगा 20,000, उसका हाफ 10,000, राइट? एड इन एक्सपेंस, एड इन कैपिटल. परफेक्ट है. देखो क्वेश्चंस एग्जाम बोर्ड्स के लिए क्वेश्चन सिंपल रहते हैं, एक भी डिफिकल्ट एडजस्टमेंट नहीं. चलो लेट्स स्टार्ट. और थोड़ा स्पीड रखेंगे, ठीक है? वी विल मेंटेन प्रॉपर स्पीड. अच्छा, जिनके पास क्वेश्चन है आई कैन अगेन शेयर. ये हम मार्च 2014 का कर रहे हैं, ग्रुप पे है वैसे. मेरा टारगेट है एटलीस्ट वीक में मुझे 3 आवर्स भी एक्स्ट्रा मिले. इट्स मोर देन इनफ फॉर मी. चलो जल्दी करो. एंड यू गाइस हैव टाइम, इसलिए कि आपके पास टाइम नहीं है. Considering your exams are in, I don't think there will be term exams. हाँ, ये कॉलेज चौकसी वगैरह में हो सकता है, बट
बाकी कोई कॉलेज में टर्म्स आई डोंट एक्सपेक्ट, बिकॉज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कंडक्ट द राइट टर्म एग्जाम्स, एंड फिर वो चेक कौन करेगा? दूसरा चैलेंज चेकिंग भी है ना. Even once my November exam syllabus gets over, I will again spend more time with you. जैसे अभी एक एक दो दिन हमें एडिशनल लेक्चर्स लेते हैं, तब तो मैं डेली कर दूंगा. ठीक है. दिस इज कैपिटल अकाउंट. P&L account, trading and P&L. Trading and profit and loss account. Then comes your balance sheet. And capital accounts. ठीक है. ओके, चलो. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन रहेगा. ठीक है. यस, मैंने ग्रुप पे शेयर किया, अगर जिनको पेपर चाहिए फिर भी उनके लिए. सो आपको एग्जाम में क्या पूछा था ये भी क्लिक हो जाएगा. ठीक है. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 6, 7. दिस इज March 14. और ये क्वेश्चन इजी लगेंगे आपको. ठीक है. सो डेबिट साइड को पोस्ट करते हैं. डेबिट रिमेन्स डेबिट ना. यस. बिल्डिंग असेट. कोई डेप्रिसिएशन नहीं आउटर कॉलम. 4 lakhs.
Then plant and machinery. One lakh 20 inner column. Then then purchases trading debit. Opening stock लो जगह रखो. Two purchases. Two purchases. 6 lakhs 50. Then carriage. Two carriage. कोई एडजस्टमेंट नहीं. 7,000. कैरेज में क्या एडजस्टमेंट हो सकती है? कैरेज पेड फॉर मशीनरी इंक्लूडेड इन द कैरेज, तो कैरेज से माइनस करके मशीनरी में ऐड करेंगे, फिर डिप्रिसिएशन देंगे लाइक दैट. ठीक है. ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक इज 90,000. देन ठीक है 90,000. उसके बाद यस परचेस हुआ, ओपनिंग स्टॉक हुआ, वेजेस. कोई एडजस्टमेंट है वेजेस को? नहीं. वेजेस आर 35,000 at 35,000. Then debtors RDD है, which is 1,50,000. Then salaries P&L debit. Two salaries. Salaries include paid in advance, ऐसे कुछ तो है, तो इनर कॉलम में. ठीक है. 28,000. Postage and telegram. Two postage and telegram 4,000. Then two insurance. कुछ इंश्योरेंस इंक्लूड्स प्रीपेड वगैरह कुछ है कि नहीं है? बाहर लिख दो. इंश्योरेंस में प्रीपेड हो सकता है, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं रहेगा. राइट. फॉर द ईयर एंडेड ऐसे कुछ 5,000. देन बैड डेट्स. ये रिकॉर्ड किया आपने, इसको ओल्ड बोला जाएगा. देयर आर नो न्यू बैड डेट्स. आउटर कॉलम में 3,000. देन टू रेंट. $4,000. डिस्काउंट डेबिट 3,000. देन ड्रॉइंग्स कैपिटल डेबिट. टू ड्रॉइंग्स. हमेशा एक लाइन ब्लैंक रखते जाओ ओपनिंग बैलेंस के लिए, उसके नीचे लिखते जाओ टू ड्रॉइंग्स. फर्स्ट लाइन में मत लिखते जाओ, बिकॉज दैट इज नॉट द ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस जनरली आप उस लेजर के ओपनिंग बैलेंस के लिए एक लाइन हमेशा ब्लैंक रखने की. ड्रॉइंग्स मीना रीना. which is 10,000, 5,000. 10,000 and 5,000. 10,000 and 5,000. आगे डेबिट साइड डन. अब क्रेडिट साइड पे
देखो ट्रायल बैलेंस भी कितना सिंपल है एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे कैपिटल्स क्रेडिट पे बाय बैलेंस बट डाउन 3000 2000 3 lakhs 2 lakhs। उसके बाद सेल्स बाय सेल्स 8,14,000। देन क्रेडिटर्स एंड ओडी लाइबिलिटी में नो एडजस्टमेंट। क्रेडिटर्स को कौन सी एडजस्टमेंट हो सकती है? तीन तीन एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। एक अनरिकॉर्डेड परचेसेस, परचेसेस में ऐड होके क्रेडिटर्स में ऐड होगा। दूसरा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से माइनस होगा एंड पी एंड एल के क्रेडिट पे, क्रेडिटर्स से माइनस होगा एंड पी एंड एल के क्रेडिट पे। एंड तीसरा राइट बिल्स इंडोर्स डिसऑनर, क्रेडिटर्स में ऐड होगा डेटर्स में ऐड होगा। तीन के सिवा कोई एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स में नहीं रहेगी, एक भी एडजस्टमेंट नहीं। देन ओडी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक ओडी 20,000 20,000 ठीक है। ऑल पोस्टिंग्स आर डन, अब एडजस्टमेंट्स करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज 1,10,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 1,10,000 ट्रेडिंग क्रेडिट। ट्रेडिंग क्रेडिट 1,10,000 राइट, एड इन एसेट 1,10,000 क्लोजिंग स्टॉक। देन आगे depreciate plant and machinery at the rate of 10% less। एक्चुअली हम डेप्रिसिएशन सबसे एंड में करते हैं, बट इसमें कोई दूसरे एडजस्टमेंट है ही नहीं एसेट्स के रिलेटेड, प्लांट एंड मशीनरी तो डायरेक्टली डेप्रिसिएट करेंगे। सो 1,20,000 का 10% 12,000, 12,000 इट इज 1,08,000, इट इज 1,08,000 ठीक है। आगे एंड इट इज अ लॉस टू डेप्रिसिएशन 12,000। उसके बाद create RDD of 5% on debtors, less RDD at the rate of 5%। 1,50,000 का 5% 7,500 आएगा। Therefore यहाँ पे आ जाएगा 1,42,500 नेट डेटर्स। मीन्स हम उनसे इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिकवर होगा। योर डेटर्स आर स्टिल 1,50,000, they are not 1,42,500। RDD is not reduction in the debtors, it is a provision against debtors, ठीक है। एंट्री होती है पी एंड एल टू आरडीडी, इसको हम न्यू आरडीडी बोलते हैं बराबर। $7,500। नेक्स्ट सैलरीज इंक्लूड 2,500 एज एडवांस, लेस इंक्लूड है तो एक्सक्लूड करो। एडवांस टू वर्कर्स कितना 2,500।
So this will be 25,500. 27 plus 1,028. Advance is an asset. लिखो. Advance salary to worker. $2,500. 2,500. Then partners are allowed interest at the rate of 5% on their capital. Interest on their capital. By interest on their capital. कैपिटल क्रेडिट तो इंटरेस्ट भी क्रेडिट. कैपिटल क्रेडिट होते हैं इसलिए इंटरेस्ट भी क्रेडिट होगा कैपिटल में. ठीक है. एट द रेट ऑफ 5%. एक्चुअली हमने यहाँ पे भाई P&L लिखना चाहिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रैकेट में लिखना चाहिए. 15,000 10,000. आपको एटलीस्ट 10% 5% तो निकालना जल्दी आना चाहिए. ठीक है. 15,000 and 10,000. ठीक है. 15 plus 10 25. लायबिलिटी कैपिटल में ऐड हो गया. P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मीना रीना which is 15,000 and 10,000. Total 25,000. उसके बाद यस ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन. नो हिडन एडजस्टमेंट. एक भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है. नो हिडन एडजस्टमेंट. ठीक है. देखते हैं आप. क्लियर है यहाँ तक. So now you can easily find out net profit. अच्छा थोड़ा मैं इसको मेरे इधर एडजस्ट करता हूँ. देखो अब मैं कैसे करता हूँ. चलो क्रेडिट आउटर कॉलम 8,14,000. देयर इज नो रिटर्न्स. आउटर कॉलम 6,50,000. कट मत करो उसको अंडरलाइन करके बाहर लिख दो. क्रेडिट इज मोर विच इज 9,24,000. ओके. जीपी कितना है रे. किसने निकाला है. अच्छा ग्रॉस लॉस है. अच्छा लॉस है या प्रॉफिट है. किसने ग्रॉस लॉस लिखा. अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट है. ठीक है ठीक है. 000 0 plus 0 7 plus 5 12 12 plus 2 14 1 carry 10 75 75 plus 3 75 plus 3 78 78 मैं कितना ऐड करूं तो 92 मिलेगा. 4 ऐड करूंगा तो 84 plus 10 it should be 1,42,000. yes 2
GP by GP. 1,42,000. Then 1,42,000 total. यस, अब हमें इधर बैलेंस ढूंढना है. 500 प्लस 500,000. 500 प्लस 500,000. 1 carried. 26 30. बराबर ना. 26 प्लस 4 30. देन 30 प्लस 5 35. 35 प्लस 3 38. 38 42. 42 45. 45 प्लस 12 45 55 57. 57 प्लस 7 64. 64 प्लस 25 9. 64 plus 25 69. 69 89 89 90. Is it 53? Yes, perfect. To net profit. Distributed क्या रेशियो है? In the ratio of 3:2 ना. 53,000 in that ratio. So 53,000 in that ratio divided by 5 करना होगा. 5 ones of 0 6 double multiply by 2 21,200 multiply by 3 800 1 carried 30 31,800 31,800 21,200 परफेक्ट. प्रॉफिट है तो कैपिटल के क्रेडिट पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस इनटू ब्रैकेट एनपी 31,800 21,200. Therefore final capital to balance carried down 5,000. So balance is 3,35,800 36,800. इसका 5,000 2,26,200. चेक करो इतना कैपिटल में बैलेंस रहना चाहिए मेरे हिसाब से. एंड देयरफॉर कैपिटल्स मीना रीना मीना एंड रीना कितना है 336,800. दूसरा है 226,200.
1 carried 12 13, 1 carried 5 6, 5,60,000. ठीक है, and then add 5,63,000. 000 तो दिख रहा है मुझे straight away. Then 3, yes 3. Then 56 plus 18, 20 ऐड करूंगा. 76 minus 2, 74. 74 plus 2, 76. 763,000 आंसर है. 7,60,000. नेक्स्ट, यहाँ पे भी वही आना चाहिए. 500 plus 500,000, 1 carried. 1 carried. 9 plus 2, 11. 11 plus 2, 13. Again 1 carried. 1 plus 4, 5. 5 plus 5 plus 1, 6. 5th digit पे हो ना मैं. हाँ, 4 plus 1, 5. 5 plus 1, 6. 6 plus 1, 7. 7,60,000 हो गया. चेक करो, देखो कितना सिंपल एग्जाम में. एग्जाम में डिफिकल्ट नहीं रहेगा, आई डोंट थिंक सो. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. जितेश एंड, ठीक है, J and L are the partners. Sharing profit and losses 2:1. From the following trial balance and the adjustments given below, you are required to prepare trading and profit loss account for the year ended 31st March 2013. आगे लिखा है and the balance sheet as on that date. Prepaid insurance, ठीक है. प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ पे आएगा? राइट, असेट में आएगा. राइट, इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से माइनस मत करना, वो माइनस हो चुका है. अगर वो ट्रायल बैलेंस में तो एडजस्ट हो चुका है, फिर से उसको अलग से एडजस्ट मत करो. नेक्स्ट, इंश्योरेंस P&L डेबिट. एक्चुअल में आपने टोटल है ना 2,800 का इंश्योरेंस पेड किया था, उसमें से 800 प्रीपेड है और 2,000 एक्सपेंस है, और आपने एडजस्ट कर दिया. आरबीडीडी, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ओल्ड ट्रेडिंग P&L क्रेडिट, डिस्काउंट डेबिट का P&L डेबिट, पोस्टेज P&L डेबिट, सैलरीज P&L डेबिट, डेटर्स क्रेडिटर्स असेट लायबिलिटी. 66 असेट, 68 लायबिलिटी, वेजेस ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, कैरेज ट्रेडिंग, परचेस एंड सेल्स ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट, रिटर्न्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड. इनवर्ड वाले सेल्स माइनस होंगे, आउटवर्ड वाले परचेस से माइनस होंगे. आगे इन ट्रेडिंग, ओडी लायबिलिटी, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड असेट, कैपिटल्स कैपिटल के क्रेडिट पे. नेक्स्ट, राइट ऑफ ₹2,000 फॉर बैड डेट्स एंड प्रोवाइड 5% ऑन डेटर्स. पहले बैड डेट्स माइनस होगा, फिर आरडीडी माइनस होगा, एंड बीइंग लॉसेस P&L डेबिट में आएंगे. गुड्स वर्थ ₹4,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री साइन पर, ट्रेडिंग क्रेडिट बीइंग आउटफ्लो P&L डेबिट, एडवर्टाइजमेंट. क्लोजिंग स्टॉक at the end of the year valued at 56,000 while its market price is 60,000. we will value, हम अकाउंटिंग करते टाइम 56 से करेंगे, whichever is lower. salaries were outstanding 2,000, add in expense, add in liability. depreciate land and building and plant and machinery. अच्छा, कौन कौन किस किस को एडजस्टमेंट है? डेटर्स को 2 एडजस्टमेंट्स है, फिर सैलरीज को एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग की, एंड उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, इनको डेप्रिसिएशन है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट.
योर टारगेट, ऐसे क्वेश्चंस 20 मिनट्स शुड बी द टारगेट, 20 मिनट्स में टैली करके रख देने के बाजू में, ठीक है, होता है। ड्रॉ करो, फॉर्मेट ड्रॉ करो, देन वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग, ठीक है। Sir, when we have just to do capital accounts by fixed or fluctuating, and the items are posted properly, but the total goes wrong. How many? देखो, to be very frank मैं बोलता हूँ ना, स्टेप वाइज मार्किंग रहते हैं। आपने पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस में जो कुछ भी है उसको ठीक से पोस्ट किया है तो 3-4 मार्क उसमें मिल गए। एडजस्टमेंट ठीक से किए, मेजर मार्क्स तो एडजस्टमेंट को रहेंगे, एंड 1-2 मार्क्स आपको टैली के लिए रहते हैं, 1-2 मार्क टैली के लिए रहते हैं, ठीक है। तो आप पकड़ के चलो, अगर टैली नहीं होता है तो मे बी यू कैन से 1-2 मार्क्स कम मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो, आई थिंक सबने फॉर्मेट किया होगा। देखो आप घर पे क्या, वैसे भी घर पे क्या आप क्या कोई इतना बड़ा काम नहीं कर रहे हो, सो लेक्चर अटेंड कर सकते हो, मुझे यही बोलना है। हाँ, बाहर जा रहा है, आपको कॉलेज वगैरह जाना पड़ रहा है, सब चीजें तो मैं मानता हूँ कि कभी भी लेक्चर रखा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, मैंने दोनों पेपर्स ग्रुप पे शेयर किए हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और ये एग्जाम है अक्टूबर 2014, अक्टूबर 2014। लिखो यहाँ पे क्वेश्चन 7, अक्टूबर 2014, अक्टूबर 2014, ओके। एक एक, प्रीपेड इंश्योरेंस, करंट असेट, as it is in trial balance, no adjustment required, 800. Next, insurance, P&L debit, to insurance, कितने का है? 2000. So this is after deducting that 800. This is after deducting 800. Next, RBDD, credit, reserve for bad and doubtful debts. Say old, rupees 1000. Next, discount, debit wala, 800. Then postage,
3,200. Then salaries. Salaries 56,000. कोई एडजस्टमेंट है क्या सैलरीज को? नहीं ना, है आउटस्टैंडिंग है. देन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 66, 68. क्रेडिटर्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर लिख दो. देन वेजेस, ट्रेडिंग डेबिट. वेजेस का कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, बाहर लिख दो. वेजेस आर 24,000. देन ओपनिंग स्टॉक. इज इट मैंडेटरी टू हैव ओपनिंग स्टॉक? नो. अगर लास्ट ईयर में जितना था पूरा सेल हो गया तो ओपनिंग स्टॉक नहीं रहेगा. आपके इसमें जनरली रहेगा, बट मैं बोल रहा हूँ इट इज नॉट मैंडेटरी. ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक होना भी मैंडेटरी नहीं. जो भी अगर सब सेल हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक नहीं रहेगा. Whatever you purchase, everything got sold. There is no stock in that case. Opening stock is 48,000. Then ओपनिंग स्टॉक होगा, यस. कैरेज है, कोई एडजस्टमेंट नहीं. विच इज 1,000. देन आगे कैरेज हो गया. कैरेज के बाद परचेस एंड सेल्स है. टू परचेसेस. इनर कॉलम में 1,93,200 बाय सेल्स 3,01,600. देन रिटर्न्स, लेस रिटर्न्स 9,200. परचेस से माइनस होगा क्रेडिट वाला. एंड 5,600 सेल से माइनस होगा. सो इट इज 1,84,000. यहाँ पे रहेगा 2,96,000. ठीक है. आगे ओडी लाइबिलिटी में 5,006, नहीं, इट इज 1,20,200. देन टू नहीं, 1,20,800 है. आगे नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिसिएट करना है. इनर कॉलम 24,000. लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में 1,76,000. देन कैपिटल्स, कैपिटल के क्रेडिट पे 52,48. जितेश JNL. ठीक है.
मेरा ट्रायल बैलेंस एक जगह पे गया। यस। अब राइट ऑफ ₹2,000 बैड डेट्स एंड 5% RDD। चलो पहले ऑलवेज बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स कितने? 2000। 64,000 लेस RDD न्यू एट द रेट ऑफ 5%। 64,000 का 10% 6,400 रहेगा, उसका हाफ 6,000 का हाफ 3,400 का हाफ 200, 3,200 माइनस करते टाइम 4,000 माइनस करो और फिर 800 ऐड करो। सो 60,800 एक्स्ट्रा माइनस करने का, और जितना एक्स्ट्रा माइनस हुआ है वो ऐड कर देने का। सो 2 bad debts। सैलरीज को जगह रखो, 2,000 का बैड डेट्स है, 2 RDD and RDD is 3,200। 3,200 then 4,000 के गुड्स फ्री सैंपल बोल के डिस्ट्रीब्यूट किए बाय आउटफ्लो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एज फ्री सैंपल। Goods distributed as free sample 4,000 trading credit being expense advertisement expense 2 advertisement expense में ऐड करो which is 4,000। next closing stock whichever is lower 56 पे वैल्यू करेंगे बाय closing stock trading credit and closing stock is asset। नेक्स्ट ईयर ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा बराबर ना, इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा which is 56,000। आगे सैलरीज और आउटस्टैंडिंग 2,000 एड आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना बोला उन्होंने 2,000। It is 54,000 add in liability outstanding salaries 2,000। depreciate land and building depreciation at the rate of 5%। 1,76,000 का 5% 10% रहेगा 17,600 लास्ट डिवाइड करो, तो हमें उसका हाफ चाहिए, नहीं आता है तो हमें सिंपल रखता हूँ 17,600 का हाफ चाहिए ना, पहले 16,000 का करो जो आपको इजी जाएगा, 16,000 प्लस 1,600 ऐसे 17,600। 16,000 का हाफ 8,000, 1,600 का 800, 8,800। माइनस करना है तो 9,000 माइनस करके 200 ऐड करो। अगर आपको 9,000 माइनस करने में दिक्कत है 10,000 सोचो। सो 1,70,000 से 10 जाएगा तो 1,66,000 बचेगा, मुझे फिर 1,000 ऐड करना होगा। सो 1,66,000 1,67,000 ठीक है, देन अच्छा एन प्लस 200 कितना आ जाएगा? ओंकार बोल रहे क्या? डाउट है?
1,67,200 बचेगा बराबर. नेक्स्ट आगे. नेक्स्ट एंड प्लांट एंड मशीनरी को भी डिप्रिशिएट करना है. उन्होंने लिखा है 10%. हो गया एडजस्टमेंट 2,400. 24 से 3 गया 21 प्लस 600. So 2 depreciation. Land and building. 2 depreciation. Plant and machinery 2,400 and land and building 8,800. So it is 200 1 carried 11,200. It is 11,200. So what is your GP? तो मुझे बोलो, आप लोगों ने बहुत लोगों ने आंसर लिखे हैं तो मैं डायरेक्टली वो लिख देता हूँ. GP is 99,000. Okay, by GP 99,000 plus 1 lakh. उससे सब एक्सपेंस माइनस हुए 2 NP. NP is 15,600. Okay, which are to be distributed in the ratio of 2:1. 3 से डिवाइड करना है ना. 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 5,200 multiply by 10, 10,400. Therefore, by P&L into bracket net profit, which is 10,400, 5,200. Therefore, your closing balances. Uh, 62,400 and 53,200. Yes. Therefore, capitals. Capitals are J and L. 62,400 and 53,200. Therefore, 600, 5, 11, 1,26,500. Your liability side to total at 1,400, 1 carried, 1 carried, 5 plus 1, 6, 6 plus 8, 14, 14 plus 2, 16. Right? 1 carried. 12 plus 1, 13. 13 plus 12, 13 plus 12, 25. 25 plus 6, 31. कौन से, अरे मैं कौन से डिजिट पे हूँ? फिफ्थ ना. अच्छा, फिफ्थ डिजिट पे हूँ. 13, 13 plus 12, 25. 25 plus 6, 31. ठीक है. मेरा कुछ अलग आ रहा है क्या आप लोगों से?
306 आ रहा है, मेरा कुछ अलग आ रहा है, एक मिनट, लेट मी चेक। 600 plus 800 1400 1 carried, 5 plus 1 6, 6 plus 8, सॉरी ये आ गया, ये हो गए 1 carried, 5 plus 1 6, 14, 16, 1 carried, 13। अच्छा कैपिटल की टोटल रॉन्ग ली, तभी मैं बोलूं मेरा अलग क्यों आ रहा है। हाँ फिर आ जाएगा 30 आ जाएगा, मेरा 31 आ रहा था ना। सो हमने 2014 के 2 क्वेश्चंस किए, ठीक है कर दिया मैंने करेक्ट, मेरे इधर वो टोटल मैंने रॉन्ग ली थी। तो जिनको लिखना है जल्दी करो। जस्ट एक अब भी मैं बोलता हूँ, इधर एवरीवन ध्यान देना, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट एवरीवन, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढना है, COGS इज COGS इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं समझने के लिए, ध्यान देना, दिस इज गुड कंसेप्ट। COGS, जस्ट मेरे पास 2 मिनट है इसलिए मैं ले सकता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सेल हुआ है उसकी कॉस्ट क्या है, जो सेल हुआ है उसकी कॉस्ट क्या है। तो जो सेल हुआ है वो सेलिंग प्राइस पे रहेगा, कितना सेल हुआ है 2,96,000, जो सेल हुआ है वो कितने पे 2,96,000, हमें उसकी कॉस्ट चाहिए, जो सेल हुआ है उसकी कॉस्ट चाहिए, तो उससे प्रॉफिट हटाओ उसका। सो सेल्स में से अगर मैं उसका जीपी हटाऊंगा, बिकॉज जीपी इज फॉर द सेल्स, जितना सेल हुआ है उसका ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा, राइट। सो आई कैन इजीली से इट इज सेल्स, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। Therefore, it will be 2,96,000 लेस, कितना जीपी है आपका 99,000, so it will be 1,93,000, शायद से नहीं नहीं 1,97,000। इसका मतलब हमने 1,97,000 कॉस्ट के गुड्स 2,96,000 पे सेल किया, जो सेल हुआ है उसकी कॉस्ट है 1,97,000, लिख लेना ही कहां पे, जो सेल हुआ है उसकी कॉस्ट 1,96,000 है। सपोज हमारे पास 10 यूनिट्स थे, यूनिट्स ओपनिंग में हमने 90 यूनिट्स परचेस किए, इसके रुपीज वैल्यू कुछ रहेगा, आई डोंट नो। सो आपके पास टोटल यूनिट्स हो गए 100, दिस इज कॉल्ड एज अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से हमने 80 सेल किए, दिस सेल्स विल बी एट सेलिंग प्राइस ना, दिस इज एट CP, opening stock is at CP cost price, purchase at cost price, goods available is at cost price, sale it sales is at a selling price, 20,000 is unsold। जो सेल हुआ है 80 यूनिट्स, उसकी सेलिंग प्राइस मुझे पता है, मुझे कॉस्ट चाहिए, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80 की कॉस्ट चाहिए। तो सेल से अगर मैं प्रॉफिट हटाऊंगा, अगर सेल से मैं प्रॉफिट हटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट, इसलिए मैंने सेल से क्रॉस प्रॉफिट हटा दिया। सो मैं बोलूंगा 1,97,000 के गुड्स हमने सेल किए 2,96,000 पे, मतलब उस पे हमारा 99,000 का प्रॉफिट हुआ। क्या बोलूंगा, 1,97,000 के गुड्स मैंने 2,96,000 पे सेल किए, मेरा प्रॉफिट है।
सो वन ऑप्शन इज सेल से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करो, वन ऑप्शन सेल से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करो, यू विल गेट सीओजीएस, और अदर ऑप्शन इज शायद से मैंने 11th में बोला था, जो 11th में थे उनको, दिस इज अदर वे। देखो हमने सेल्स से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया, ट्रेडिंग में से सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट छोड़ के बाकी सब चीजें सीओजीएस। इट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज लेस गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल लेस क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो भी आंसर वही आएगा। मेरे पास कैलकुलेटर में कैलकुलेटर पे देखता हूँ, 48,000 प्लस 1,84,000 प्लस 24 प्लस 1,000 माइनस 4,000 माइनस 56, इट इज 1,97,000 है क्या? 1,97,000, यस। सो कैन आई से, ध्यान देना, ट्रेडिंग अकाउंट इज, ऐसे लिख सकता हूं मैं ट्रेडिंग को, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस नेट परचेसेस, नेट परचेस मतलब माइनस रिटर्न्स, रिटर्न्स माइनस करके। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, एवरीवन ध्यान देना, ट्रेडिंग अकाउंट लिख रहा हूं मैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस जीपी, ये डेबिट टोटल है, ग्रॉस प्रॉफिट ये डेबिट टोटल है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपकी डेबिट टोटल होगी, ये आपकी डेबिट टोटल होगी, राइट? सो दिस इज डेबिट टोटल। जस्ट 2 मिनट देना, ट्रेडिंग डेबिट टोटल, दिस इज ट्रेडिंग डेबिट टोटल, ठीक है? देन इज इक्वल टू ट्रेडिंग क्रेडिट टोटल, क्रेडिट टोटल। व्हाट इज द क्रेडिट टोटल? देखो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है ना, वी नो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है। हाँ, तो ध्यान देना, ट्रेडिंग के डेबिट पे क्या करता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस जीपी should be equal to, debit should be equal to credit, net sales plus outflows plus closing stock, net sales this is at selling price, right? Then plus outflows, goods distributed free sample, goods lost by fire, goods lost by theft, outflows other than sale, other than sales, cost price plus closing stock, generally at cost price, cost or NRV whichever is lower। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरीवन, opening stock generally at cost price, purchases are at cost price, ठीक है? ये डेबिट इक्वल टू क्रेडिट टोटल हो गई, ये तो सबको समझता है, ठीक है? देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एट कॉस्ट प्राइस, एक्सपेंसेस तो कॉस्ट पे रहेंगे, प्रॉफिट इज प्रॉफिट, सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस जीपी द ट्रेडिंग डेबिट is equal to trading credits, net sales at selling price, outflows by goods distributed free sample, lost by fire, lost by theft, withdrawn by partner for personal use, and then closing stock। therefore can I say, अगर मैं थोड़ा इसको रिशफल करता हूं लाइक दिस, ओपनिंग स्टॉक राइट प्लस नेट परचेसेस ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस
ये जो आउटफ्लोज है ये राइट हैंड साइड पे प्लस में मैं इधर लेके आ गया, आउटफ्लो अदर देन सेल्स, कॉस्ट प्राइस, ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऐड में इधर लेके आ गया, इज इक्वल टू नेट सेल्स सेलिंग प्राइस, जीपी लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस में इधर लेके गया माइनस में, सेल्स माइनस प्रॉफिट, sales minus profit is COGS. Therefore, this is the formula of COGS. This is the formula of COGS. What is opening stock plus purchase plus direct expense minus outflows other than sale minus cost of goods sold. ट्रेडिंग अकाउंट टैली कर रहे हैं. देखो एक फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस कैरेज, सब कॉस्ट वाले आइटम, सब कॉस्ट वाले आइटम माइनस गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल माइनस क्लोजिंग स्टॉक. यही इक्वल टू क्या रहेगा आपका नेट सेल्स माइनस जीपी. So that is called as COGS. That is called as COGS. ठीक है, cost of goods sold. Sir, 2000 outstanding salary are to be added in the outstanding. किधर है? ठीक है, वो 56 होना चाहिए. मैंने डायरेक्टली आपका लिख लिया ना. 5,60,000. ठीक है, 56,000. नेक्स्ट. सो COGS पे ध्यान देना. ठीक है, आगे इस क्वेश्चन का कुछ नहीं ना अभी. हाँ, सो दिस इज द वे यू कैलकुलेट COGS. ये फॉर्मूला लिख लेना COGS का. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ COGS. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता होना चाहिए. ट्रेडिंग अकाउंट देख के हम COGS निकाल सकते हैं. सेल से ग्रॉस प्रॉफिट हटाओ COGS. और दूसरा ऑप्शन क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस ऑल आउटफ्लोज अदर देन सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक. यू विल गेट द आंसर. ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर. चलो आज के लिए ठीक है इतना. कल आपका ये OC होगा, परसों आपका OC होगा. देन नेक्स्ट 2 days, yeah, what I will do, I will take eco tomorrow, day after tomorrow eco. OC में सैटरडे संडे रखता हूँ बिकॉज आई एम नॉट इन पुणे ऑन सैटरडे संडे. ठीक है, सो मैं कल मेरा इको रहेगा 12th इको, परसों मेरा 12th इको रहेगा. अकॉर्डिंगली आई विल कम्युनिकेट विद मैम, मैं वो चेंजेस कर दूंगा. ठीक है, तो लेक्चर्स मिस नहीं होंगे कोई भी. थैंक यू.